Good morning, dear students. In the previous class, we have discussed about the process of urine formation, in which the first step was the glomerular filtration, the second step was the selective reabsorption, and the third one is tubular secretion. We said that as all the steps are important, we also need to understand what is the individual function of each part of the renal tubule. क्योंकि renal tubule में proximal convoluted tubule, loop of Henle and distal convoluted tubule as well as collecting ducts include होते हैं. तो जब हम बात करते हैं about reabsorption or secretion, we need to understand that what are the substances that are going to be reabsorbed and what are the substances that are going to be secreted in different parts of the tubule. So here our topic is the function of the tubules. The very first tubule just after the Bowman's capsule is the proximal convoluted tubule. So first we are going to mention about proximal convoluted tubule, that is PCT. PCT जो है it is lined up by, मतलब PCT की जो lining है, there is presence of the cuboidal epithelium with microvilli or you can say brush border. Due to presence of microvilli, it provides a greater surface area for rapid absorption of most of the substances. So about 70 to 80% of the filtrate that has entered into the Bowman's capsule and PCT is going to be reabsorbed in the region of the PCT itself. So PCT, it is lined up by cuboidal brush border epithelium. So as there is presence of the cuboidal epithelium with microvilli, it provides greater surface area for absorption. तो यहाँ पे रैपिड अब्जॉर्प्शन होने वाला है क्योंकि यहाँ पे है सेल्स विच आर हैविंग माइक्रोविलाई जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, इसीलिए मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन इज गोइंग टू अकर. सो 70 to 80% nutrients and water is going to be reabsorbed. Reabsorbed in which region? In the PCT itself. ठीक है, तो यहाँ पे जो reabsorption होने वाला है उसमें एक चीज हमने कह दी, that is the water. Second thing that is going to be reabsorbed is the nutrients. अब nutrients में मान लीजिए कोई भी एसेंशियल, कोई अमीनो एसिड है, राइट, या तो कोई विटामिन है या तो ग्लूकोज है, राइट, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो ये न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो भी कहाँ पे हो जाता है? पीसीटी में. मोरओवर पीसीटी मेंटेन्स एन आयोनिक एंड पीएच बैलेंस, मतलब ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करता है. सो इट मेंटेन्स ionic balance by reabsorption of bicarbonates. What is one more thing that is going to be reabsorbed? That is the bicarbonates. जब हम एरो बाहर की तरफ बना रहे हैं उसका मतलब कि वो सारी चीजें बाहर रीअब्सॉर्ब हो रही है, और जो रीअब्सॉर्ब होता है वो किस में एंटर होता है? तो पास में जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज रन होती है उनमें, मतलब ब्लड में एंटर हो जाता है. The things which are reabsorbed from here are going to be taken into the blood capillaries which are surrounding this structure of renal tubule. It maintains the pH and ionic balance by the reabsorption of bicarbonates as well as salts, Na+, Cl-, ये nutrients, ये salts जो है वो भी reabsorb हो जाएंगे and there will be release of substances like H+, K+ and ammonium ions. H+, K+ and ammonium ions को हम यहाँ अंदर की तरफ डाल रहे हैं, मतलब
ये चीजें ट्यूब्यूलर सिक्रीशन से पीसीटी में एंटर होंगी, क्योंकि अगर ये चीजें ब्लड में ज्यादा रहेंगी तो दे विल डिस्टर्ब द ऑस्मोलैरिटी और द वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड, मतलब ब्लड वॉल्यूम में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाएगा अगर ये सब्सटेंसेस ब्लड में रहे तो, क्योंकि H+ जो है वो ब्लड का पीएच जो है उसे लो कर देता है, और लो कर देने पर वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर सेवरल इल इफेक्ट्स इफ द पीएच ऑफ द ब्लड इज डिक्रीज. यू हैव स्टडीड अबाउट बोर इफेक्ट एंड हाल्डेन इफेक्ट, राइट? So that are the problems that can occur. So therefore some substances are reabsorbed and H+, K+ and ammonium ions are secreted. Secrete हो रहा है मतलब tubular secretion और reabsorb हो रहा है मतलब the step of reabsorption. Now after the PCT, the next region that comes is the loop of Henle, right? So second, loop of Henle. Now this loop of Henle has minimum role, उसमें भी जो ascending limb है उसमें minimum role होता है reabsorption का, मतलब इतना कुछ reabsorb नहीं होने वाला, but it maintains high concentration in the medullary fluid. Loop of Henle is mainly for maintains high osmolarity in medullary interstitial fluid. मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब ये रेनल ट्यूब्यूल्स के आसपास जो फ्लूइड है, क्योंकि लूप ऑफ हेनली कहाँ पे है, मेड्यूला तक पहुंच जाता है, ठीक है? तो मेड्यूला में जो फ्लूइड होगा आसपास का उसे कहा जाएगा इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड. और इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड का कंसंट्रेशन हमेशा हाई होना चाहिए, तो ये हाई कंसंट्रेशन मेंटेन करने का काम जो है दैट इज ऑफ द लूप ऑफ हेनली. क्यों हाई होना चाहिए वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट मैकेनिज्म टू कंसंट्रेट द यूरिन, राइट? मैकेनिज्म टू कंसंट्रेट द यूरिन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं जब आप समझ जाओगे कि क्यों मेड्यूलरी फ्लूइड का कंसंट्रेशन हाई रहता है, ठीक है? सो लूप ऑफ हेनली में दो लूप्स है, एक है डिसेंडिंग और एक है असेंडिंग. अब जो डिसेंडिंग लूप है इट इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू द सॉल्ट. So the descending limb is permeable to water and impermeable to salt, right? तो permeable to water है, इसलिए इस लूप में क्या हो रहा है कि वाटर जो है इट इज कंटिन्यूअसली गेटिंग रीअब्सॉर्ब. अगर वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है उसमें वाटर का कंटेंट कम होता जाएगा एंड देयरफॉर एज यू मूव डाउन इन द डिसेंडिंग लिम्ब द फिल्ट्रेट कीप्स ऑन गेटिंग कंसंट्रेटेड. फिल्ट्रेट क्या होता जाएगा, कंसंट्रेटेड होता जाएगा, क्योंकि पानी जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है. सो दैट concentrates, this loop is responsible for concentrating the filtrate. तो फिल्ट्रेट जो है वो कंसंट्रेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि वाटर कंटेंट बाहर आ रहा है और फिल्ट्रेट जो है वो लूप ऑफ हेनली में नीचे जाता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे वो यहां तक पहुंचेगा तब तक वो मैक्सिमम कंसंट्रेटेड होगा. द ascending limb is permeable to electrolytes but impermeable to water. So ascending limb is permeable to electrolytes and impermeable to water. So as it is impermeable to water and permeable to salts, that is the reason why salts मतलब electrolytes जो है वो बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है, पर वाटर जो है उसके लिए वो इम्परमिएबल है, इसलिए वाटर का मूवमेंट नहीं होगा. मतलब यहाँ तक जैसे जैसे कंसंट्रेट होता गया था फिल्ट्रेट, वैसे वैसे ऊपर आते आते इन द असेंडिंग लिम्ब द फिल्ट्रेट विल अगेन बिकम डाइल्यूट. मतलब एक तरफ फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होता जाएगा और दूसरी तरफ फिल्ट्रेट जो है वो वापस नॉर्मल होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे
पानी रीअब्सॉर्ब हो रहा है, जबकि यहाँ पे सॉल्ट रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं. एंड दैट इज द रीजन दैट एज इट मूव्स अप it again becomes somewhat normal. इसके अलावा लूप ऑफ हेनली में और सारे इलेक्ट्रोलाइट्स या बाकी सारे सब्सटेंसेस का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता. सारे ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पीसीटी में रीअब्सॉर्ब हो चुके हैं. इसलिए यहाँ पे मेन रोल सिर्फ वाटर और सॉल्ट का ही रहता है. दैट इज वाटर रीअब्सॉर्ब्ड इन द डिसेंडिंग लिम्ब एंड सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड इन द असेंडिंग लिम्ब. नाउ आफ्टर मूविंग दिस कम्स द डीसीटी. तो जो डीसीटी है, DCT is responsible for conditional reabsorption. Conditional reabsorption of electrolytes and water. यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर रीअब्सॉर्ब होते हैं, पर कंडीशनल. कंडीशनल मतलब जरूरत होगी तो. डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अवर बॉडी, it will decide whether it wants to release a concentrated urine or it wants to make a dilute urine. अगर आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है तो डाइल्यूट यूरिन बनता है. अगर हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है. तो ये जो कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट बनाने की स्ट्रेटेजी है वो रेगुलेट करते हैं किडनीज इटसेल्फ एंड सम पार्ट इज रेगुलेटेड बाय आवर नर्वस सिस्टम. तो कौन से टाइम पे कंसंट्रेटेड करना या कौन से टाइम पे डाइल्यूट करना वो किस पे डिपेंड करता है? बाय द सिग्नल्स व्हिच आर रिसीव्ड बाय द डीसीटी. तो डीसीटी जो है उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर रीअब्सॉर्ब होते हैं, बट कंडीशनल. अगर जरूरत होगी तो यहाँ पे वाटर, सॉल्ट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर रीअब्सॉर्ब एंड सब्सटेंसेस लाइक H+, K+ and ammonium ions are released. So DCT also maintains the pH and the ionic balance. Osmolarity को maintain करता है by reabsorbing certain substances and secreting certain substances like H+, K+ and ammonium ions. The last role is of the collecting duct. The collecting duct is also mainly for the reabsorption of the water, but some amount of salts are also going to be reabsorbed. Okay, so here collecting duct for reabsorption of water and electrolytes. But one more thing that is reabsorbed is a small amount of urea. A small amount of urea is also reabsorbed to maintain high osmolarity of medullary fluid. To maintain the high osmolarity of the medullary fluid. मतलब यहाँ से थोड़ा बहुत यूरिया भी रीअब्सॉर्ब होता है और यही यूरिया मेड्यूलरी फ्लूइड का कंसंट्रेशन हाई रखता है. मैंने पहले भी कहा कि क्यों कंसंट्रेशन हाई रहना चाहिए वो हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. दैट इज द मैकेनिज्म फॉर फॉर्मिंग अ कंसंट्रेटेड यूरिन. पर तभी देख के लिए याद रखना है कि पीसीटी में वाटर, न्यूट्रिएंट्स, बाइकार्बोनेट्स रीअब्सॉर्ब होते हैं और H+, K+ अमोनियम आयन सिक्रीट होते हैं. डिसेंडिंग लूप इज परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू सॉल्ट. इसलिए वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब होता है और फिल्ट्रेट जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे कंसंट्रेट होता जाता है. इन द ascending limb it is permeable to salt and not to water. Therefore salts will be moving out and there will be no movement of water. As it moves up in the DCT, तो DCT में conditional reabsorption होता है. Substances like water, sodium and bicarbonates are reabsorbed. H+, K+ and ammonium ions are secreted. Collecting duct also is responsible for absorption of water and electrolytes, and some amount of urea is also going to be reabsorbed back to maintain high osmolarity in the medullary fluids. So that was about the function of the tubules. In the next lecture we will begin with
the mechanism to concentrate the urine, which is the counter current mechanism.